السلام علیکم، میں آپ سب کا دوست زین اور آپ سب دیکھ رہے ہیں زین ٹی وی اسلامک نیٹ ورک۔ اس دنیا کے اندر کئی ایسے افسوسناک ظالمانہ قسم کے واقعات ہو چکے ہیں جس کا دکھ اور غم آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ختم ہوتے جاتا ہے، لیکن اسلامی تاریخ کے اندر واقعہ کربلا ایسا ثانیہ ہے جس کا زخم پوری امت کے مسلمانوں کے دلوں میں آج بھی ہے، اور نئے اسلامی تاریخ کا آغاز اسی دکھ اور غم کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور یہ قربانی سے ہی شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ واقعہ کربلا کو ایک اسلامی تاریخی واقعہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام ان کے گھر والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، مظلومانہ شہید کیا گیا، اور اس سے زیادہ اس واقعے کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ہم لوگوں نے واقعہ کربلا کے روح اور اس کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ ثانیہ دراصل ہم سب کے لیے سبق دینے کے لیے تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد معاشرے کے اندر کوئی یزید کھڑا ہو تو اس کا مسلمان امت ڈٹ کر مقابلہ کر پائے۔ ویورز، میں خود اپنی ریئل لائف کا دکھ آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں جب کبھی بھی اہل بیت کا ذکر نکالتا ہوں تو لوگ مجھے نسل حرام کا ٹھپا لگاتے، لوگ مجھے کافر کا ٹھپا لگاتے، لوگ مجھے یزیدیت کا ٹھپا لگاتے، اور مجھے شیعہ کا ٹھپا لگایا جاتا۔ ویورز، ہمارے معاشرے میں بڑا آسان ہے ہمارے کرداروں پر چھینٹے اچھالنا۔ کبھی خود سے دین بھی پڑھا کرو، واقعہ کربلا کے بارے میں معلوم کرا کرو۔ ویورز، میں جانتا ہوں دراصل گمراہ مسلمانوں کا قصور نہیں، بلکہ کچھ گمراہ عالم دین کا بھی اس میں قصور ہے، جو کہ ہر اسلامی فرقے کے اندر موجود ہے۔ افسوس، مسلمانوں کو دین سکھانے کی بجائے صرف اپنی دکان چلا رہے اور دین فروشی کر رہے۔ ذرا ان ویڈیوز کو دیکھیں، جیسا کہ ان ویڈیوز میں کچھ نیک لوگوں کے بھی ویڈیوز میں نے ڈالے ہیں جو کچھ دین کے نام پر منبر رسول پر بیٹھ کر جو اسلام کا مذاق بنا رہے، ان کا بھی میں ویڈیو ڈالا ہوں، غور سے دیکھیے گا۔ آج جس حال میں امت مسلمہ گزر رہی ہے، میں صرف ایک ہی دعا کرتا ہوں، اے میرے رب، ہمارے امت کو کھویا ہوا ڈاکٹر اسرار احمد واپس دے دے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، بدترین ہے وہ عالم کہ جو لوگوں کو اس طرح دین بتائے کہ سننے والوں کے اندر گناہ کرنے کی جرت پیدا ہو، یہ ہم کر بھی لیں تو کچھ نہیں۔ بدترین ہے وہ عالم، یہ کیوں نہیں بتاتے؟ اتنے ڈپلیکیٹ مولوی ہو گئے کہ اوریجنل مولوی کا دور دور تک پتہ نہیں۔ کرتا اتنا لمبا کہ پیجامہ کی ضرورت ہی نہیں، اور پیجامہ اتنا اونچا کہ لگتا ہے نینی تال جیل سے چھوٹ کے سیدھے چلے آ رہے ہیں۔ کرتا بڑے بھائی کا، پیجامہ چھوٹے بھائی کا، ٹوپی ہے کہ تکیا کا کھول ہے، سجدے گاہ سے لے کے یہاں تک، اور بدعقیدوں کی داڑھی ہے کہ کوڈرما کا جنگل ہے، جھارکھنڈ کا جنگل ہے، گوریا گھس جائے تو نکلنے کا راستہ نہ ملے۔ نہیں، بیوی کا دودھ پی سکتے ہیں بالکل جناب، بھر کے رکھا گئے، دوستوں کو بھی پلایا کریں۔ یزید جیسا بھی تھا، کافر، مشرک، اور جو ذاکر آج یزید کو گالیاں دیتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ بد عقیدہ ہے، ان کا کفر کھلا ہوا کفر۔ اور یزید کو یہ جتنے دنیا جہان کے ذاکر ہیں ان سارے ذاکروں سے افضل ہے یزید۔ کی ملاقات ہوتی ہے اور یزید سے ہم نے کہا کہ کیا آپ نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو یزید نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا اور جنت دیا۔ حق اور باطل کا معاملہ، اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی۔ یزید مسلمانوں کے امیر بالکل تھے، لیکن کیا مسلمان ابھی ان سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ بادشاہوں سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ اس سے بھی اپنے دور میں غلطیاں ہوئی، یہ تو نہیں کہ مسلمان نہیں تھا۔ حضرت معاویہ صحابی تھے، وہ صحابی کا بیٹا ہے،
उन्हें सहाबी की जियारत की है, उनके हाथ में बैयत की है। तो साहब बड़े मासूम बन के कहते हैं कि भाई यजीद ऐसा था वैसा था। यजीद को किसने पाला था, किसने पोसा था, किस घर में शराब की खरीद फरोख्त होती थी, वो तफसील से मैं बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन के अक़वाल में बयान कर चुका हूँ। तो मुआविया के यहाँ शराब की खरीद फरोख्त होती, मुआविया के सूद जायज़ था, मुआविया के यहाँ रेशम के कपड़े पहने जाते, मुआविया के यहाँ सहाबा की गर्दनें काटी जाती, मुआविया के यहाँ हज़रत अली को गाली दी जाती, हज़रत फातिमा जो ख़वातीन जन्नत की सरदार है उनको गाली बकी जाती, हुसैन और हसन को कत्ल करवाया और धमकियां दी और उनको गालियों से नवाजा जाता। वो घर था जहाँ ये होता था। और मैं बहुत तफसील से बता चुका हूँ कि जिस वक्त हज़रत हुसैन का सर और दीगर अफराद का सर यजीद के दरबार में लाया गया तो वो फ़ख्र के साथ ये अशार पढ़ रहा था कि काश के मेरे आबा अजदाद जिनको बद्र में काट के फेंका था अली ने, काश के वो आज होते और खुश होते कि मैंने मोहम्मद के ख़ानदान से बदला ले लिया है। सही सनदों के साथ ये रिवायतें मौजूद है जो मैं तफसील के साथ बयान कर चुका हूँ। लोग दलीलें देते फिरते हैं, कहते हैं जी एक पेंट कोट वाला मौलवी है, उसने जी 1500 बंदा एक दिन मुसलमान कर दिया। पर पता है वो बदबख्त कहता क्या है? वो कहता है अमीरुल मोमिनीन यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैं क्या करूं उसके 1500 मुसलमान को या 2000 उसके कलमा, और वो जी बड़ी दलीलें देता है। वो दलीलें संभाल के रखे। और एक मौलवी साहब उसकी हिमायत कर रहे थे, कहते नहीं बंदा ठीक है, वो भूल गया था, असल में कसूर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का था, असल में गलती अमर बिन साद की थी। यजीद को ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। मैंने कहा बड़ी तुम्हारी करीबी रिश्तेदारी है यजीद के साथ, तो अल्लाह से दुआ क्यों नहीं मांगते कि तुम्हारा हशर यजीद के साथ करे? हम अल्हम्दुलिल्लाह जुमे वाले दिन मस्जिद में बैठ के दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारा हशर इमाम हुसैन के गुलामों में करना। और एक दौर वो भी आया कि मिंबरों पे बैठ के मौला अली को गालियां दी जाती थी। ये तारीख में ये दौर भी आया। आप पढ़े तारीख, बनु उमैया कैसा दौर भी दुनिया ने देखा है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था मन सब्बा अलीयन फकद सब्बानी, जिसने मेरे अली को गाली दी उसने मुझे गाली। और लोगों ने मिंबरों पे बैठ के बाकायदा हुकूमत की तरफ से ये जो है वो कानून था कि तुम्हारा खुतबा मुकम्मल नहीं होगा जब तक अली को गाली नहीं दोगे। ये लम्हे भी आए। जब सबसे पहले ये वीडियो देखें, ये तो अल्लाह के नबी को भी पूछा जाएगा। कुरान में सूरतुल माइदा में अल्लाह ने फरमाया बल्लिग मा उनजिला इलैका मिन रब्बिक, ऐ नबी जो कुछ भी आपके रब ने आपके ऊपर नाजिल किया ये पहुंचा दे, और अगर आपने ना पहुंचाया आपने रिसालत का हक नहीं अदा किया। ये रसूलुल्लाह ने हमें अल्लाह के कहने में बताया कि मेरे अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मेरे बाद उनसे उसने शुरू करना, हजरत अली का साथ देना, हजरत अली के साथ खड़े होना, अहले बैत का दिफा करना, कुरान पे अमल करना। ये वो सारी बातें जो मेरे नबी ने मुझे कही हैं। और ये नबी को किसने बताई? अल्लाह ने। तो ये दीन है। तो इस दुनिया ने ये मंजर देखा है कि नबी को कब्र में गए 50 साल हुए हैं और नबी के मानने वालों ने कलमे के नाम पे उसके पूरे खानदान को ज़बह कर दिया। ये आज तक इंसानी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि अंबिया की औलाद को नबियों की वफात के 50 साल के अंदर उनके मानने वाले उस दीन के नाम पे ज़बह कर दें। आप समझते हैं इतना बड़ा वाकया हो गया, उम्मत ठंडी बैठी रहे। और फिर दूसरी बात, जन्नती नौजवानों के सरदार हजरत मीर मुआविया या उनका बेटा है या हजरत अली और उनके बेटे हैं। तो जिन्होंने जन्नत में जाना है ना वो अली और हसन हुसैन का नाम लेंगे, और जिन्होंने यजीद और उसके बाप के साथ रहना है वो उनका नाम लें। हम तो उनके साथ हैं। गमे हुसैन में जिस आंख से आंसू बहा उस आंख पर दोज़ख हराम हो गई। मोहब्बत हुसैन का शोला जिस दिल में भड़क। अहले सुन्नत, ए मुसलमानों, जुमे के खुतबों में कभी तुमने ये हदीस सुनी? तरक्तु फीकुम सकलैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती किताबल्लाह। हमें लोग कहते हैं हम हर वक्त करबला को क्यों डिस्कस करते हैं? इसलिए कि करबला जो है वो आधा दीन है। हुजूर ने 2 चीजें हमें दी हैं, कहा कुरान को पकड़ना और अहले बैत के साथ उसने सलूक करना। अहले बैत के साथ उसने सलूक किया है कि जो लोग अहले बैत के मुखालफीन हैं उनको नंगा किया जाए और अहले बैत को सपोर्ट किया जाए। अहले बैत का नाम इसलिए ना लें शिया हजरात को मौकिफ को फायदा पहुंचेगा, या लोग तुम्हें शिया कहेंगे तो आप अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मोहब्बत अहले बैत और मवद्दत अहले बैत और मोहब्बत हसनैन, मवद्दत और मोहब्बत सैयदा फातिमा कहा जाता है जब ये कारवान अहलुल बैत का करबला के बाद, शाम के बाद, कूफा के बाद वापस जब मदीना पहुंचा तो उम्मुल बनीन को जब पता चला अहलुल बैत का कारवान वापस आ रहा है तो आगे नहीं आई, फ़कत पूछती हैं जाकर देखो कि मेरा बेटा अब्बास, मेरा बेटा जाफ़र, मेरा बेटा उस्मान वो इस कारवान में है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फातिमा का बेटा करबला में शहीद हो गया, मेरा कोई बेटा बच के मदीना आ गया। अगर ऐसा है तो मैं हरगिज़ इस कारवान को नहीं देखूंगी। लेकिन जब कहा गया बीबी तेरे बेटे भी शहीद हो गए,
फिर आई मरसिया पढ़ते हुए जनाब ज़ैनब उलिया को आकर गले लगा लिया, बेटा मुझे ये बताना मेरे अब्बास ने वफा की थी या नहीं की थी, मेरे बेटों ने वफा की थी या नहीं। कि अहलुल बैत आपके भी हैं और मुहर्रम में आले रसूल का जिक्र आप अपने तरीके से करें, जिस तरह आपको अच्छा लगता है, आप जैसे पसंद करते हैं। शिया की तरह ना करें, कमीजें ना उतारें, जंजीरें ना मारें, मातम ना करें, लोहे ना पड़ें, लेकिन आप जिक्र तो करें। आपका कोई ताल्लुक नहीं है अहलुल बैत से, आपका खानदान रसूलुल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये मुबाहला में रसूलुल्लाह ने जो अहलुल बैत को आगे लाया, सामने लाए अल्लाह के हुक्म पर, इसलिए थे कि आज आप नजरअंदाज करके बैठ जाएं। जैसा आपके मसलक में है उस तरह से आप जिक्र करें अहलुल बैत का, और करते हैं इत्तफाकन। अहले सुन्नत खूबसूरत जिक्र करते हैं, लेकिन अहले सुन्नत बाज बहुत बामाना गुफ्तगू करते हैं, जिसका एक नमूना खुद जामे और वतुल वुस्का में अहले सुन्नत आते हैं। 10 दिन पूरे आके मजलिस पढ़ते हैं और खूबसूरत गहरा पैगाम देते हैं। ये मुझे ताज्जुब होता है जवानों पर और मोमिनीन पर, जब आप फिजिक्स पढ़ते हो जाकिरों से नहीं सुनते हो, केमिस्ट्री जाकिरों से नहीं सुनते हो, इकोनॉमिक्स जाकिरों के पास नहीं पढ़ते हो, और आईटी और कंप्यूटर साइंस जाकिरों से नहीं सुनते हो, तो दीन क्यों इतना सस्ता समझ लिया है आप? अगर उनको मुस्तनद समझते हो तो ये उलूम उनसे हासिल करो, छोड़ो यूनिवर्सिटियां, छोड़ो, अपने बच्चों को निकालो कॉलेजों से, स्कूलों से, और जाकिरों के भेज दो कि ये इनको मजाले सुनाए केमिस्ट्री, फिजिक्स, रियाजी पर। उनको तो खुद नहीं आती है उलूम, इसलिए आप अच्छा काम करते हैं जो उनके पास नहीं भेजते। स्कूलों में भेजते हैं, कॉलेजों में भेजते हैं, यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं, मुस्तनद मुअल्लिमीन के पास भेजते हैं, और इसीलिए कुछ समझ भी आ जाती है आपको। दीन क्यों समझ में नहीं आता कि दीन गलत एकेडमी में गलत प्रोफेसर के पास जा बैठते हैं, अपने बच्चों को भी बढ़ा देते हैं, जिसने दीन को इतना ही दीन से ना वाकिफ है जितना केमिस्ट्री से ना वाकिफ है, जितना फिजिक्स से ना वाकिफ है, और उस इल्म में आप उस पर एतमाद नहीं करते। अल्लाह के बताए हुए दीन में उस पर क्यों एतमाद करते हैं जिसने एक दिन खुद अपनी जिंदगी का दीन समझने में सर्फ नहीं किया। जिस इंसान ने कुरान की हराम करदा चीजों को अपने लिए हलाल ठहरा लिया, उसका कुरान पर कोई ईमान नहीं है। वो झूठा है अगर कहता कि मेरा ईमान है कुरान के ऊपर। यही हाल आज हमारा है। अपने अमल से पूरी उम्मत मुस्लिमा कुरान को झुटला रही है, इसलिए कि कुरान का निजाम कहीं कायम नहीं, कुरान के कवानीन कहीं नाफिज नहीं। जो बेसा मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, और उसके बाद फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं देता। वीवर्स, मस्जिद के ठीक सामने एक शराब खाना खोल लिया जाता है, जिसकी वजह से आने जाने वाले नमाजी को इससे बहुत तकलीफ होती है, और इमाम साहब इस दुकान के लिए हर नमाज के बाद नाकामी की दुआ करते हैं, और इससे होता ये कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान पूरी जलकर खाक हो जाती है, और शराब खाने का जो मालिक होता है इमाम साहब और मुख्तलियतों पर केस कर देता है कि मेरी दुकान सिर्फ इस वजह से जलकर खाक हो गई। हर नमाज के बाद इमाम साहब और मुतल्ली मेरे इस शराब खाने की नाकामी की दुआ किया करते थे, और दूसरी साइड इमाम साहब और मुतल्ली इस बात से बिल्कुल इनकार किया करते। और मामला जब अदालत में पहुंचता है तो जज खुद हैरान होता है। असल में मामला ये होता है कि शराब खाने के उस मालिक को हमारे इमामों की दुआओं में सख्त से ज़्यादा यकीन होता है, जबकि इमाम साहब और मुतल्लिक खुद इस बात का इनकार करते। वीवर्स, इस बात को, इस मैसेज को समझने की कोशिश कीजिए। वो एक लाइन याद आ गई है वीवर्स, सफ़ों में आकर खड़े हुए हैं गुम ख्यालों में अपने अपने, सफ़ों में आकर खड़े हुए हैं गुम ख्यालों में अपने अपने, इमाम मस्जिद से जाकर पूछिए नमाज़ें किसे पढ़ा रहा है। इसी तरह से एक हिंदू पंडित भाई से रिपोर्टर्स ने सवाल किया गया, क्या दुनिया में इस्लाम तलवार की ज़ोर पर फैलाया गया, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? फिर इसके बाद पंडित ने कहा कि मैं खुद कुरान पाक पढ़ता हूँ और मैं रमज़ान के रोज़े भी रख सकता हूँ, लेकिन इस्लाम तलवार की ज़ोर पे नहीं बल्कि कुरान और रसूलुल्लाह की सुन्नत पर और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से इस्लाम फैलाए। अगर उन्होंने इस्लाम को तलवार के ज़ोर पर फैलाना ही होता तो मक्का को उसी दिन फ़तह कर लिए होते जिस दिन ताइफ के लोगों ने इन पर पत्थर बरसाए थे और खून से आपके जूते भर गए। तुम रिपोर्टर लोग खुद से जाकर कुरान पाक क्यों नहीं पढ़ते?
कुरान कहता है भाई, पढ़े जाके। मैं आपसे बता रहा हूँ ना, साधु संत कुरान कब से पढ़ने लगे? अब कल को अगर आपको ये मालूम चले कि रमजान में मैं शुक्रवार को रोजा भी रख लेता हूँ, तो उसमें भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। नहीं, रोजा भी रखते हैं। इस्लाम तो तलवार की नोक पे फैला ना, ऐसा तो कहा जाता है ना। अगर इस्लाम तलवार की नोक पे पहुंचता तो हजरत मोहम्मद साहब उसी वक्त मक्का मदीना खत्म कर चुके होते जब तक उनको पर पत्थर मारे गए थे। शांति सुन, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए थे ना, उनके पैरों की जूती तक में खून भर गया था, तभी इस्लाम खत्म कर देते हो। इस्लाम फैला है तलवार की नोक पे नहीं, कुरान पे, हदीस पे, हजरत मोहम्मद साहब की जीवन पे जाके पढ़ो कायदे से।